कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर. टुडे वी विल स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. तो आज वोल्टेज मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर को. बट डायरेक्टली वी कैन नॉट कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. सम मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड. कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा. Which modifications are required and why we have to do modification during the conversion of galvanometer into voltmeter, that we will see today. आज वही चीज़ देखने वाले हैं. तो आइए देख लेते हैं conversion of galvanometer into a voltmeter. So, if we want to find potential drop across any resistance, then how can we measure potential drop across any resistance using voltmeter? So let me consider one simple circuit. This is the battery of EMF E. This resistance I am taking R1 and this resistance I am taking R. And suppose current flowing through this circuit, that is I. कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. Then what will be the potential drop across two ends of this resistance R? Potential drop across two ends of resistance R is nothing but IR. This will be the potential drop. And I want to find this potential drop across two ends of resistance using any meter. तो मीटर के थ्रू हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करना है. तो कहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए हमें मीटर? पहली बात तो ये है कि अगर मैं मीटर लगाना चाहूँ तो मीटर को कहाँ पे कनेक्ट करें? ये हो गया EMF E, ये हो गया R1, ये हो गया R. ठीक. अगर मैं मीटर लगाना चाहूँ तो मीटर को सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल? टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप वी शुड कनेक्ट डिवाइस इन पैरेलल विथ दिस रेजिस्टेंस R. बिकॉज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पैरेलल कनेक्शन? पोटेंशियल डिफरेंस will remain same. If potential difference remains same in parallel connection, then we should connect voltmeter in parallel with resistance. Right now I am connecting galvanometer in parallel with this R. When we connect galvanometer in parallel to this resistance R, then what will happen? Current flowing through the circuit will be different. Because now this galvanometer will offer some resistance, that is G. So now resistance of the circuit is different. As resistance changes, then current flowing through the circuit will change. Suppose current flowing through this resistance R, I am taking I dash. ये फ्लो होते होते यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है मैं मान लेता हूँ I dash. Then what is the first difficulty that we are facing during the conversion of galvanometer into voltmeter? पहली डिफिकल्टी क्या है? That is voltage cannot be measured accurately. We cannot find voltage, that is potential drop, across two ends of resistance using galvanometer accurately when the situation is like this. क्यों नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेटली? क्योंकि एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? IR. हम मेजर करना चाहते हैं IR. और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिल रहा है मुझे बताओ? I dash R. And IR is not equal to I dash R. क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा वही गैल्वेनोमीटर मेजर करके बताएगा. वॉट एवर इज द पोटेंशियल ड्रॉप ओवर हियर, सेम विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर. यस और नो? देयरफॉर वी विल गेट फॉल्स रीडिंग. एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी नहीं.
तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें चाहिए था वो मिला नहीं। ये पहली डिफिकल्टी हो गई ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। चलो, इनिशियली रेजिस्टेंस क्या है मुझे बताओ। इनिशियली व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? दैट इज R1 प्लस R, करेक्ट। इनिशियली रेजिस्टेंस क्या हो गया ये दोनों का? R1 प्लस R। फाइनली बताओ रेजिस्टेंस क्या बना? फाइनली the resistance of the circuit, that is R into G upon R plus G, because these two are in parallel, plus R1. So R1 plus these two are in parallel, then product upon addition R into G upon R plus G. तो ध्यान से देखो, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो था वो चेंज हो चुका। When resistance will change, then current flowing through the circuit will change. When current will change, then potential drop across two ends of resistance will change. It means we will get wrong value of potential drop across two ends of resistance when we connect galvanometer in parallel with this resistance R. तो गलत रीडिंग मिलेगा। तो कैसे सॉल्व की जाए ये प्रॉब्लम को? हाउ कैन वी गेट द रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम? इसका सॉल्यूशन क्या बने मुझे बताओ। तो सॉल्यूशन में आइडियली व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ G? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आइडियली? कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहे, मतलब रेजिस्टेंस टोटल क्या मिलना चाहिए? R1 प्लस R। देन द वैल्यू ऑफ G शुड बी इनफाइनाइट। G की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। When we take very large value of resistance of galvanometer, then what will happen? No current will pass through the galvanometer. Only current will pass through R1 and R. Yes or no? Then total resistance of the circuit, when we consider this as infinite, then total resistance of the circuit will be R1 plus R only. Yes or no? क्योंकि फॉर्मूला हमें मालूम है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का? इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम मान लें R डैश, तो 1 अपॉन R डैश क्या बन जाएगा? 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन G, राइट। इफ यू टेक G इनफाइनाइट, देन 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, देन R डैश इज इक्वल टू R, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नथिंग बट R1 प्लस R ओनली। तो इसका सॉल्यूशन क्या बने कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी वेरी लार्ज। कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट आइडियली। बट इफ यू टेक G इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन नो करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ले लेंगे तो इसमें से कोई करंट ही पास नहीं होगा। ओनली करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस R. When no current passes through the galvanometer, then galvanometer will show zero deflection. कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा। अगर डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा तो कैसे वोल्टेज मेजर करेंगे? तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आइडियली तो हम बोल सकते हैं G इज इक्वल टू इनफाइनाइट। थियोरेटिकली द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? प्रैक्टिकली what should be the value of resistance of galvanometer? Value of resistance of galvanometer, that should be G tends to infinite. Infinite नहीं होना चाहिए, that should be very large. G should be very large. Infinite नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा हो तो चलेगा। Then small amount of current will pass through the galvanometer and galvanometer will show some reading. So practical solution, that is G tends to infinite, but G should not be equal to इनफाइनाइट। ये हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बना। ठीक। नाउ सेकंड डिफिकल्टी दैट वी आर फेसिंग, दैट इज वोल्टेज कैपेसिटी। वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट कैपेसिटी के बारे में हम पढ़े थे लास्ट टाइम। दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विच वी कैन पास थ्रू द इंस्ट्रूमेंट safely is called current capacity of that meter. Here voltage capacity, only certain amount of
voltage or potential drop can be measured using galvanometer. If more than certain amount of voltage is given, then this galvanometer will get damaged. मतलब इसकी एक वोल्टेज कैपेसिटी होगी, कुछ वोल्टेज कैपेसिटी पे वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, और उसके बाद और ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, दैट coil of the galvanometer will get burned. So here we have to keep voltage capacity in mind. करंट कैपेसिटी क्या थी, Ig, तो वोल्टेज कैपेसिटी क्या बनेगी, Ig इंटू जी. ये सुन, वोल्टेज कैपेसिटी क्या बनेगी, V इज इक्वल टू आई आर, Ig इंटू जी. दिस इज द वोल्टेज कैपेसिटी. व्हेन वोल्टेज given to the galvanometer is more than Ig into G, then what will happen, the device galvanometer will get damaged. This is the second difficulty which we are facing during the conversion of galvanometer into a voltmeter. तो इसका भी सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. तो क्या बने सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, we should connect some high value of resistance in series with galvanometer. Some resistance I am connecting in series with galvanometer. तो ये चीज़ होनी चाहिए. This RS, that is very large resistance, right? So some large value of resistance is connected in series with galvanometer. When large value of resistance is connected in series with galvanometer, then what will happen? Total resistance will be G plus RS. Yes or no? This is very large value of resistance plus G. Then that will be very large. So resistance of this branch will be very large. Then only small amount of current will pass through this branch. Yes or no? Resistance, that is not infinite, but the resistance is very large. Then small amount of current will pass through the galvanometer. Yes or no? When small amount of current passes through the galvanometer, right now let me take that current to be Ig. Correct? This is the maximum value of current which we can pass through the galvanometer. Yes or no? Then we can prevent this galvanometer from the burning. And when some amount of current is passing through the galvanometer, then galvanometer will show deflection, and we can measure potential drop. Potential drop across G and RS is, let me take V, that is V. So when we connect very large value of resistance in series with galvanometer, then this difficulty is solved. What should be the value of G? It should be very large. So when we connect very large value of resistance in series, then resistance in parallel to R will be very large. When very large value of resistance is connected in parallel, then what will happen? Very small amount of current will pass through this branch, and remaining current will pass through this R1 and R. Therefore, potential drop across this R, that is I dash R, will be nearly equal to IR. This I dash R will be nearly equal to IR when we connect high value of resistance in series with galvanometer. Majority of the current will pass through the R, very little amount of current will pass through the galvanometer. So first difficulty, that is solved. Now second difficulty, that here this galvanometer has small amount of voltage capacity, that is Ig into G. If we want to raise the voltage capacity of galvanometer, then we should connect some high value of resistance in series. So now you can see what is the voltage capacity, that is nothing but V is equal to Ig into G plus Ig into RS. Yes or no? Now the voltage capacity, that is V is equal to IR, Ig into G, and here
Ig into Rs. So now the voltage capacity of the galvanometer is increased, correct? So Ig into G plus Ig Rs. What can we take common? Ig, so G plus Rs. Therefore G plus Rs is equal to V upon Ig. Therefore Rs is equal to V upon Ig minus G. This V is called न्यू वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. इसे क्या बोला जाता है? न्यू वोल्टेज कैपेसिटी. क्योंकि पहले तो ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकता था? आई जी इंटू जी. पर अब क्या वोल्टेज मेजर कर सकता है? आई जी इंटू जी प्लस आई जी आर एस. सो वी दैट इज न्यू वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. When we want to convert galvanometer into a voltmeter, then this much value of resistance should be connected in series with galvanometer. So Rs is equal to V upon Ig minus G. याद करो, during the conversion of galvanometer into an ammeter, the value of resistance to be connected in parallel with galvanometer should be very small. But during the conversion of galvanometer into a voltmeter, the resistance to be connected with galvanometer in series that should be very large. क्या ठीक? तो ये खास ध्यान रखना है. वोल्टमीटर में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ए मीटर में स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है. ठीक है, कहीं गड़बड़ी होनी चाहिए नहीं. सो दिस वे we can increase the voltage capacity of galvanometer by connecting some high value of resistance in series with galvanometer. Rs is equal to V upon Ig minus G. What is V? That is the desired value of voltage that we want to measure using galvanometer. अब हम मेजर कर सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि अब हमने सीरीज में क्या लगा दिया? हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो ज़्यादातर करंट कहाँ से पास हो जाएगा? यहाँ से. क्या ठीक? Now, here, if we want to increase its voltage capacity n times, then what should be the value of Rs? अगर मुझे वोल्टेज कैपेसिटी कितनी बढ़ा देनी है? n टाइम्स. तो Rs की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ध्यान से देखना. टू इंक्रीज वोल्टेज कैपेसिटी n times, Rs इज इक्वल टू, चलो तो पहले वोल्टेज कैपेसिटी क्या थी? Ig इंटू जी. इससे कितनी गुनी बनानी है? n टाइम्स. तो आपकी वोल्टेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी? n टाइम्स Ig इंटू जी. वी की जगह क्या लगा देंगे? n टाइम्स Ig इंटू जी अपॉन Ig माइनस जी. This Ig will get cancelled. Therefore, Rs is equal to, what can we take common? G, then n minus 1 into G. Rs is equal to n minus 1 into G. याद करो, शंट के लिए क्या मिला था? G अपॉन n minus 1. Rs के लिए क्या मिला? n minus 1 into G. मतलब वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा? n minus 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और शंट में n minus 1 कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर में. क्या ठीक? तो ये चीज़ हमें कहाँ पे काम आने वाली है? MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. व्हेन वी वांट टू इंक्रीज वोल्टेज कैपेसिटी टू n टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू n minus 1 into G when we want to increase its voltage capacity n times. Okay. So this way we can convert galvanometer into voltmeter. But one प्रोसीजर इज लेफ्ट. एक और चीज़ करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. जस्ट बाय कनेक्टिंग दिस Rs इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर वी कैन नॉट कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. एक चीज़ और करनी पड़ेगी. क्या है वो चीज़? दैट इज़ द कैलिब्रेशन. इफ़ यू वांट टू मेजर वोल्टेजेस इन वोल्ट, देन कैलिब्रेशन शुड बी इन वोल्ट. If you want to measure voltages of the order of millivolt, then you have to do calibration in terms of millivolt.
If you want to do measurement of the order of microvolt, then the calibration should be of the order of microvolt. तो कैलिब्रेशन भी करना पड़ेगा, then only we can convert galvanometer into a voltmeter. So this is the last theory of this chapter. I hope the concept of galvanometer, moving coil type galvanometer is now clear to you. galvanometer कैसे वर्क करता है, construction principle of moving coil type galvanometer, then conversion of galvanometer into an ammeter, conversion of galvanometer into a voltmeter, all these things are clear to you. अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे थियरियाँ हैं जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सारे लॉजिक जो हैं इस चैप्टर के आगे हमें काम आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आगे काम आने वाली हैं। नाउ वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल बाकी है। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। चलो लास्ट थियरी हो गई, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल 4.13, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, सर्किट इज गिवन, battery of 3 volt is connected with one resistance 3 ohm and here ammeter is connected. What is the value of the current if the ammeter shown A is a galvanometer with a resistance Rg is equal to 60 ohm। मतलब इस एमीटर को अभी मान लो गैल्वेनोमीटर, मतलब कुछ ऐसी सर्किट कंसिडर करो कि ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गई बैटरी, इसको मान लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या बोले, 60 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम और बैटरी हो गई 3 वोल्ट की, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर विथ अ रेजिस्टेंस दिस। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट करंट आई वी वांट टू फाइंड। चलो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, करंट फाइंड करना है तो ओम्स लॉ याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू V/R। चलो बैटरी का वोल्टेज हमारे पास है 3 वोल्ट, पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सर्किट का, तो पहले R की तरफ जाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 60 एंड दिस 3, दिस 2 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज और इन पैरेलल, सीरीज बिकॉज ओनली वन करंट इज फ्लोइंग। If there isn't any change in current, then resistors are said to be connected in series. So these two are in series. 60 plus 3, 63, because R is equal to 3 plus Rg is equal to 3 plus 60 is equal to 63 ओहम। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल चुका है। क्या अब हम करंट निकाल सकते हैं, मुझे बताओ करंट क्या बनेगा, I is equal to V/R, V कितना है 3 वोल्ट अपॉन 63, 3/63 निकाले क्या बनेगा, इज इक्वल टू 0.048 एम्पियर। इसे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.048 एम्पियर। दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब ए मीटर में से कितना करंट पास होगा, 0.048 एम्पियर। मतलब ये गैल्वेनोमीटर हमें कितना करंट दिखाएगा, 0.048 एम्पियर, ठीक है। चलो सेकंड केस पे आ जाते हैं, बी। इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू 0.02 ओम। अब शंट कनेक्ट करना है, यही ए मीटर पर अब गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ शंट कनेक्ट करना होगा, तो कैसी सर्किट बनेगी, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गई बैटरी, थ्री वोल्ट 3 ओहम, दिस इज Rg। गैल्वेनोमीटर है पर रेजिस्टेंस क्या कंसीडर कर रहे हैं, Rg, और इसके साथ क्या कनेक्ट करना है, एक शंट दैट इज S। उसका रेजिस्टेंस क्या बोला हमें, RS।
शंट का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है आर एस इज इक्वल टू 0.02 ओहम। नाउ टेल मी दिस जी एंड एस दिस टू आर इन पैरेलल, तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बनेगा? अब आर बनेगा 3 प्लस आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, क्या ठीक? इज इक्वल टू 3 प्लस आर जी कितना मिलेगा? आर जी दिया हुआ है हमें 60 ओहम, आर एस कितना है 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02, 60 इंटू 0.02, ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 60 प्लस 0.02 दैट इज 60.02, सो नियरली यू विल गेट आंसर 3 प्लस 0.02. Actually whenever two resistors are connected in parallel then the value of resistance will be smaller than the smallest value of resistance, मतलब 0.02 से कम होगा, कम होके ज़्यादा फाइंड करोगे तो 0.1 0.019 ऐसा कुछ मिलेगा, तो नियरली रेजिस्टेंस क्या बनेगा 0.02 ओहम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या बनता है 3.02 ओहम। आप बताओ इस केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से? यहाँ पे करंट डिवाइड होगा इसलिए ये पैरेलल कनेक्शन, पर वापस तो यहाँ पे सेम करंट ही आने वाला है, तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना 3, R कितना 3.02, कैलकुलेट करोगे 3 अपॉन 3.02 क्या बनेगा 0.99 एम्पियर, क्या बनेगा 0.99 एम्पियर। 3 अपॉन 3.02 नियरली 1 ही होगा, कैलकुलेट करें तो मिलेगा 0.99 एम्पियर। चलो बी हो गया सॉल्व। लास्ट पार्ट, इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस क्या मान लो 0, मतलब सर्किट में ये सिर्फ 2 ही चीज़ें रही, इसका तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 0। चलो तो अगर ऐसी सर्किट कंसिडर करें तो बैटरी का क्या हो गया 3 वोल्ट, ये हो गए 3 ओहम, कितना करंट पास होगा I इज इक्वल टू V बाय आर, V कितना बना 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है 3 ओहम, 3 बाय 3 दैट इज 1 एम्पियर, 3 बाय 3 दैट इज 1 एम्पियर, मतलब एक्चुअली सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो हमारा जो मीटर है उसे भी कितना करंट मेजर करना चाहिए 1 एम्पियर, पर पहले केस में कितना मेजर करा है 0.048 एम्पियर, क्या वो सही है? नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर डायरेक्टली, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या था मॉडिफिकेशन, हमें कुछ शंट कनेक्ट करना चाहिए एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे छोटा सा शंट कनेक्ट किया है, इसे कनेक्ट करने से हमारा करंट कितना मिला 0.99 एम्पियर, दैट इज नियरली 1। सो ऑलमोस्ट accurate answer we are getting 0.99, that is nothing but 1 ampere. So this way by connecting small value of shunt in parallel with galvanometer we can convert galvanometer into an ammeter। ठीक, तो ये हमने एक न्यूमेरिकल से भी देख लिया। So last example also we have completed। With this I have completed chapter number 4 moving charges and magnetism। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, बट आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट टाइम। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।